Yes, students, in last lecture we have studied about Coelenterata and Ctenophora. Both were tissue level organization animal with radial symmetry. Okay, now we have to talk about Platyhelminthes. As the name platy mean flat and helminthes mean worm, so they are known as flat worm. What do you mean by flat worm? Flat mean the body is dorso-ventrally flat. That means body is a dorso-ventral flat. ना तो राउंड है ना उसमें कुछ सेगमेंट है, कुछ नहीं है. द बॉडी इज फ्लैट ओनली. जैसे इफ वी क्लोज द बुक तो दैट इज वी कैन से डोर्सोवेंट्रली फ्लैट है लाइक दिस. तो बॉडी बिल्कुल ऐसे अप्रेस्ड होती है. सो वी टॉक अबाउट हैबिटेट, देन दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट मीन्स दे लिव इन द बॉडी ऑफ एनी अदर एनिमल्स. ओके, सो दे आर मेनली एंडोपैरासाइट. ह्यूमन बींग्स में भी रहते हैं. सम ऑफ द सिमेट्री. नाउ here the symmetry is bilateral. Bilateral, if you remember, that means way in which we can divide the body into two equal half through a single plane only. That means एक ही plane से body को divide करेंगे. जैसे हमारी में है ऐसे, तो this is the we can say right half and this is the left half. So only this plane we can divide the body into two equal half. एक ही plane से, तो such type of body is known as बाइलेटरल. अब देखो, अगर बाइलेटरल होगा तो दैट मीन्स देयर शुड बी ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ ऑर्गन आर इन पेयर. तो ऑर्गन सिस्टम होगा तो देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी ऑर्गन सिस्टम. ओके, तो दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल विद ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट विद बाइलेटरल सिमेट्री. दो नए कैरेक्टर आ गए, एडवांस कैरेक्टर आ गए. Third, if we talk about germ layer, then this is the triploblastic. Triploblastic mean here is ectoderm plus mesoderm plus endoderm है. तो that mean ये triploblastic भी इससे पहले नहीं था, तो ये भी कैरेक्टर इसमें क्या है, नया आया है. तो that means they are the triploblastic. Now due to this triploblastic nature, they are having the organ system. Now one more character introduced here, that means this is the mesoderm. तो इस mesoderm के होने से यहाँ पर muscles भी आएगी. क्या है यहाँ पर? muscles भी. muscle cells we have studied in the we can say structure of a internal structure of Coelenterata. but वहाँ पर वो जो muscle cells थी we can say in the form of diffuse form थी. but here there is a complete muscle we can say, जैसे हमारे biceps triceps में बॉडी में है, तो that means यहाँ muscle चाहिए. और ये muscle किसी है, इस मेसोडर्म से. तो एक ये पॉइंट नोट करना है. तो दैट मीन फर्स्ट विद मसल, दिस नॉट गिवन एनसीईआरटी. फर्स्ट विद ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट विद ऑर्गन सिस्टम, फर्स्ट विद बाइलेटरल सिमेट्री. तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेम द एनिमल फर्स्ट विद दिस, नेम द ग्रुप ऑफ एनिमल फर्स्ट विद दिस, नेम द ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड विद दिस. What is the relation between we can say triploblastic and organ system, or what is the relationship between bilateral symmetry and organ system? तो ये हो गया. Now next is digestive system. Here we in table we have seen that in Platyhelminthes also digestive system is incomplete. That means here anus is absent. Only mouth is there. Only mouth is there for ingestion as well as egestion. Okay, if you talk about sexes, then they are hermaphrodite. अब देखो, we are talking here only about the general characters of a Platyhelminthes or any other group. In this group digestive system absent भी है, digestive system incomplete भी है, digestive system complete भी है. If you talk about Planaria, तो वहां पर digestive system absent है. कुछ में digestive system incomplete है and very few with the complete digestive system. But we have to talk only about the general characters, not specific. The specific characters that fall into the category, the another hierarchy
वी कैन से कैटेगरी दैट इज वी कैन से क्लास। अब क्लास तक हम पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पर, क्लास या ऑर्डर तक, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द फाइलम, जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम। तो हियर द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। और एनी अदर कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो, वो हम सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, नॉट स्पेसिफिक। ओके, हर एक, दैट मीन्स देयर इज ए वेरिएशन, अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स ऑफ द सेम ग्रुप। तो दीज आर द ओनली जनरल कैरेक्टर्स। ओके, तो digestive system incomplete, sexes are hermaphrodite. If we talk about fertilization, here the fertilization is a internal. Okay, now if we talk about development, then development is a indirect development mean there is a larval form. Okay, and here they show many larval form. We can say in some case 4 to 5 larval forms are there, उसके बाद adult बनता है. One more character is there, they complete their life cycle in 2 different hosts, then they are known as a digenic. That means we can say complete their life cycle in 2 different hosts. Okay, जैसे we can take the example of fasciola, ठीक है, is known as liver fluid, liver वर्ड आया liver से, तो ये कंप्लीट अपना लाइफ साइकिल करता है एक तो स्नेल के अंदर एंड लिवर ऑफ शीप, जो भेड़ है उसके अंदर कंप्लीट करता है। तो दे आर मेनली डाइजेनिक, दैट मींस दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 different होस्ट। एंडोपैरासाइट है, इफ यू रिमेंबर या कहीं सुना हो तो जैसे प्लाज्मोडियम है विच कॉज मलेरिया, वो भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किस में करता है, मॉस्किटो में और ह्यूमन में। ओके, तो दे आर मेनली डाइजेनिक। सो फर्टिलाइजेशन इज internal, development is indirect, and here many larval forms are there. Okay, sometime 4 to 5 larval forms भी होती है यहाँ पर। Now come to another character that is regarding excretion. These are the flame cells. Flame cells help in osmoregulation and excretion. Osmoregulation mean to maintain balance of water and ions in the body, and excretion mean removal of waste substance, हमने क्लास 10th में पढ़ा था। तो दैट मीन दीज आर द फ्लेम सेल्स। अब बात आती है फ्लेम सेल्स क्या है, तो दैट मीन्स फ्लेम सेल एक स्पेसिफिक सेल है हैविंग pseudopodia like structure, and in this another structure also found, जिसमें से फ्लेम लाइक सिलिया होते हैं, दैट मीन फ्लेम लाइक सिलिया होते हैं, तो इससे इसका नाम आया फ्लेम सेल। ओके, तो दी सिलिया ये ऐसे से मूव करेंगे सेल के अंदर, तो जो वेस्ट सब्सटेंस है ये इसको मूव करते करते बॉडी सरफेस से बाहर निकाल देंगे। ओके, तो मेनली बॉडी सरफेस के थ्रू ये एक्सक्रीशन करता है विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लेम सेल्स। तो आपको सिर्फ ये फ्लेम सेल्स याद रखना है। इन सम केसेस दीज फ्लेम सेल फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ फ्लेम सेल दैट इज नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया, दैट इज नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया वर्ड हम आगे पढ़ेंगे, प्रोटो मीन प्रो या पहले का या अर्ली, और वी कैन से सिंपल फॉर्म। तो नेटवर्क ऑफ फ्लेम सेल बनाते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। ओके, सो जो एक्सक्रीशन है दैट इज मेनली थ्रू बॉडी सरफेस। मैं फिर कह रहा हूं दीज आर द जनरल कैरेक्टर। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें स्पेसिफिक पोर्स प्रेजेंट है, और वी कैन से एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है फॉर एक्सक्रीशन। ओके, अदरवाइज दे एक्सक्रीट थ्रू द जनरल बॉडी surface. Now come to this point, they are endoparasite. Endoparasite that means like कोई ऐसा है, कोई भी एनिमल है मान लिया, और जो
प्रीडेटर है, दैट मीन्स शिकार करता है, या कोई भी वी कैन से कोई प्रेडेटर है, हम ही ऐसे मतलब शिकारी कहीं जाते हैं तो वी वांट सम वी कैन से एडिशनल स्ट्रक्चर्स और वी कैन से सम वेपन्स अलोंग विद अस, तो दैट विल हेल्प इन फॉर दैट वी कैन से प्रोसेस। तो अब क्या है कि दे आर एंडोपैरासाइट, दैट मीन्स दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल, तो उनके पास स्पेसिफिक ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो अपना काम है वो अच्छे तरीके से कर सकें, तो दैट इज नॉन एज अडेप्टेशंस। अडेप्टेशन मीन बॉडी की ऐसी कंडीशन जो किसी एडवर्स इन्वायरमेंट में या जहां रहता है उसमें क्या कर सके, कॉप कर सके। ओके, सो हियर वन इज नोन एज हुकर एंड अदर इज नोन एज सकर। दीज आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द दिस प्लेटीहेलमिन्थेस। अब क्या करते हैं देखो, एंडोपैरासाइट है, दैट मीन्स दे लिव इन द बॉडी ऑफ एनी वी कैन से एनिमल। तो देखो हुकर, जैसे आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ टीनिया एंड अदर एग्जांपल ऑफ फैसियोला। दिस टीनिया इज नोन एज टेपवर्म, जैसे टेप होती है वैसा होता है लंबा सा, एंड फैसियोला इज नोन एज लीवर फ्लू, लीवर में रहता है तो फैसियोला, टेनिया फैसियोला। देखो बोथ आर फ्लैटवर्म। अब टेनिया क्या है, आई एम ड्राइंग ओनली द माउथ पार्ट, जो इसका माउथ पार्ट है लाइक दिस। ओके, इन दिस माउथ पार्ट देयर आर हुक लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर। अब हुक क्या करेंगे, जैसे कोई हुक है, जैसे हमें किसी दीवार पे चढ़ना है, किसी से चढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, इसे हुक लगाते हैं और उसके थ्रू उसको वी कैन से ग्रैब्स करते हैं या पकड़ करते हैं। ओके, यानी कि दैट मीन्स लाइक वी कैन से एक एडहेसिव जैसा काम करेगा। तो हुक किसी चीज को पकड़ने में, स्टैंड करने में हेल्प करता है। तो दीज आर द वी कैन से हुकर्स, और ये यहां पर क्या है, इसमें माउथ है। अनदर दे आर हैविंग आल्सो सम एडिशनल स्ट्रक्चर्स, दे आर नोन एज सकर। सकर मीन टू सक। तो इस हुक के थ्रू ये किसी बॉडी के साथ ऐसे चिपक जाएगा, देन देयर इज ए सकर। वो सकर जब उसके साथ चिपका, सकर मीन टू सक, दैट मीन्स दे सक द वी कैन से सिंपल सब्सटेंस और द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वी कैन से बॉडी ऑफ, चाहे वो ब्लड हो चाहे अदर सब्सटेंस हो किसी एनिमल में, या डाइजेस्टिव सब्सटेंस हो, उसको क्या कर लेगा, सक कर लेगा। तो सकर वर्ड आया सक से, और हुकर वर्ड आया हुक से। ओके, तो ये किस में दिखाया मैंने, टेनिया के केस में और टेपवर्म के केस में। इफ वी टॉक अबाउट फैसियोला, तो फैसियोला द स्ट्रक्चर ऑफ फैसियोला इज लाइक दिस। ओके, नाउ इन फैसियोला द सेम, देयर इज माउथ, और माउथ के अराउंड हियर इज सकर। जरूरी नहीं है कि हुक सभी में हो। Okay, the mainly sucker found in most of the we can say animal or platyhelminthes. So sucker. There is one another structure like sucker present in case of fasciola, that is known as acetabulum. That is known as a acetabulum. तो acetabulum क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप का क्या है, ए स्पेसिफिक सकर है। ओके, तो ये सकर का ऊपर का क्या काम है, दीज आर द वी कैन से दैट अडेप्टेशन है, पैरासिटिक अडेप्टेशंस। ओके, इन सम ऑफ एनिमल्स, जैसे प्लेनेरिया की बात करें तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, बिकॉज दे आर ओनली सक द सिंपलेस्ट सब्सटेंस और ऑलरेडी डाइजेस्ट सब्सटेंस, तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग वेरिएशन है इसमें, तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड द अडेप्टेशन, दैट इज हुकर और सकर। सम टाइम एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सम टाइम एनारोबिक कंडीशंस भी होती है, बिकॉज बॉडी के अंदर रहता है एनारोबिकली रेस्पायर करता है। ओके, तो मेनली यू हैव टू फोकस ऑन हुकर एंड सकर। अब पता चला हुकर का, सकर का दैट मीन्स टू सक। हुकर का क्या काम है किसी को से, तो ये एसिटाबुलम है यहाँ, ये उसके साथ चिपक भी जाएगा, सक भी करेगा, और यहाँ पर उसके पास दूसरा सकर भी है, दिस सकर इज नोन एज ओरल सकर। ओरल वर्ड आया माउथ से, तो इसके पास एक ओरल सकर है, एक स्पेसिफिक सकर है, दैट इज नोन एज एसिटाबुलम। ओके, दिस लेबलिंग इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, तो
तो ये कर लेना और ये डायग्राम बना लेना, सेंडिंग द वी कैन से क्लियर पिक इन ग्रुप। ओके, तो हुकर और सर्कल की बात होगी। नाउ कम टू अनदर टर्म दैट इज टेग्यूमेंट। टेग्यूमेंट मीन्स इसे आउटर कवरिंग। वी कैन से देयर इज ए स्पेशल कवरिंग है, outer covering, that is known as tegument. Now they are live in the body of any animal, तो वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं या डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, वो क्या कर देंगे, इसको डाइजेस्ट कर देंगे, तो फिर तो ये खुद मर जाएगा। तो उससे बचने के लिए स्पेसिफिक, दैट मीन्स दिस इज ए सेलुलर लेयर बट मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ वी कैन से कंपोनेंट्स और केमिकल्स, जिससे ये इजिली डाइजेस्ट नहीं होता और वी कैन से डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये टेग्यूमेंट है। ओके, तो मेनली वी हैव टू फोकस ऑन हुकर एंड सर्कल एंड दिस फ्लेम सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। नाउ in some we can say member of this Platy elements, they show the high regeneration capacity. You have studied the regeneration in planaria in class 10 in asexual reproduction में। तो प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर, देन इंटरनल है एंड मेनी लार्वल फॉर्म है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटी एलिमेंथीज। तो फ्लैट वर्म बॉडी इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैट है, हैबिटेट मोस्टली एंडोपैरासाइट है, सिमेट्री बाइलेटरल है, बाइलेटरल होगा तो ऑर्गन सिस्टम होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। ओके, देन सेक्स इज हर्माफ्रोडाइट मीन बाइसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मेनी लार्वल फॉर्म है, फ्लेम सेल स्पेसिफिक है फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, हुकर एंड सर्कल आर द पैरासिटिक एडेप्टेशन है, टेग्यूमेंट भी होता है एंड सम विद हाई रीजनरेशन है कैपेसिटी एज इन प्लेनेरिया। तो तीन ही एग्जांपल है बुक में, वन इज ऑफ टेनिया दैट इज ऑफ टेपवर्म, सेकंड इज फैसियोला दैट इज लीवर फ्लूक एंड थर्ड इज प्लेनेरिया। तो इसके एग्जांपल तो आसानी से याद रह जाएंगे तुम्हें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटी helminthes. Now we have to move on Aschelminthes. Okay, yes student, now come to next phylum that is Aschelminthes. This Esch here mean round, so Helminthes mean worm, so these are the round worm. इनको पहले नेमेटोडा भी बोलते थे, क्लास 9 में written as नेमेटोडा, so these are the round worm. Now see the Platyhelminthes, वो फ्लैट वर्म थे, बॉडी जो थी वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट थी, बट हियर द बॉडी इज राउंड। तो जो क्रॉस सेक्शन में like this marker, the body is round in cross section, so these are the known as a round worm. Okay, here the body is non segmented. If we talk about a earthworm, then earthworm also like round worm, but body of earthworm is segmented, तो वो इसका member नहीं है, that fall into the next group. Okay, so they are known as the round worm, body is circular in cross section. Okay, if we talk about habitat, free living भी है, aquatic भी है, terrestrial भी है, parasitic भी है, that mean in plant and animal both. Now अब previously कोई character आ गया, that character would remain same in the next group, और उससे ही advanced character आएगा, हम वापस पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। तो that means in last में symmetry क्या थी, in Platyhelminthes, helminthes वो थी bilateral, तो यहाँ भी क्या है, bilateral। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन सिस्टम, तो जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो यहाँ पर कोई नया कैरेक्टर नहीं आया। ओके, न्यू कैरेक्टर इज ओनली राउंड वर्म, दैट मीन्स बॉडी इज राउंड है। अब देखो वेयर द बॉडी इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैट थी, तो फ्लैट थी तो उसके बीच में कोई भी जगह, कोई खाली गैप, कोई स्पेस ऐसा कुछ नहीं था, कैविटी नहीं थी, बट हियर द बॉडी इज सर्कुलर, ओके, इन क्रॉस सेक्शन, तो दैट मीन्स this is the outer wall of circular circumference और this is the inner gut, that means digestive tract वो है, तो इसके बीच में क्या रहेगी, खाली जगह रहेगी। ओके, that is known as cavity or coelom,
but here the type of coelom is a pseudocoelom. तो ये इसको बोले हम pseudocoelomate. Pseudocoelomate, that means the gut is not lined by mesoderm. Okay, in character, general character I have told you that this is the ectoderm, और उसके सबसे अंदर क्या है एंडोडर्म, और ये हमारी क्या है गट है जो. तो यहाँ पर जो मेसोडर्म है दैट प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउच. ओके, अगर नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे तो वो मेसोडर्म क्या करेगी, इसको ऐसे लाइन कर देगी. ओके, तो इसमें ऐसा नहीं है. तो हियर द कैविटी इज देयर बट दिस इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म. सच टाइप ऑफ कैविटी इज नोन एज ए pseudocoelom. तो ये एनिमल्स कैसे हो जाएंगे pseudocoelomate. तो हियर दिस इज द न्यू कैरेक्टर, इसको ऐसे स्टार कर दो. ओके, तो आया नया कैरेक्टर. नाउ नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. हियर दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल वेयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए complete. That means mouth is there as well as anus is there. ओके, तो उससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था, इनकम्प्लीट था. इनसिडेंटेटा टिनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थेस में, पोरिफेरा में एब्सेंट था. सो हियर कंप्लीट है. तो सबसे पहला फाइलम है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसको भी स्टार कर दो. ओके, बिकॉज हैबिटेट को छोड़ दो, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है. सिमेट्री बाइलेटरल पहले आ गई, ऑर्गन सिस्टम पहले आ गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले आ गए, प्लेटीहेल्मिन्थेस. तो सीलम आया नया, दैट इज pseudocoelomate. एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पहले नहीं था. तो इसमें अलग कैरेक्टर आ गया. नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ऑल्सो मेड बाय नेफ्रिडिया एंड प्रोटोनेफ्रिडिया, बट हियर द एक्सक्रीटरी पोर्स आर प्रेजेंट. ओके, नाउ सेक्सेस. हियर द सेक्सेस आर सेपरेट. तो सेपरेट है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाइसी, और वी कैन से डाइसियस. Okay, dioecious means unisexual, but here there one very important term that is known as a sexual dimorphism. ऐसे पढ़ना इसको, sexual dimorphism. They show the sexual dimorphism. Di means here two and morpho mean form. Two form किसकी, सेक्स की, और सेक्स की टू फॉर्म कौन सी है, वन इज मेल and other is a female. That means in this group we can say whether the animal is male animal or the female animal. Like in case of human being, if adult male is there, adult female is there, then there are many morphological character by which we can say this one is male and this one is a female. Okay, हमने क्लास 10th में पढ़ा भी था कि डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, चाहे वो पिच की बात है, चाहे वो मुस्टेच की बात है, चाहे वो ब्रेस्ट की बात है, चाहे वो कैसी भी बात हो. ओके, तो हियर द टर्म इज नोन एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मीन वेयर वी कैन आइडेंटिफाई के बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. मॉर्फो मीन फॉर्म, मॉर्फोलॉजिकल आउटर फॉर्म, कि वेदर दिस इज मेल और फीमेल. जैसे अगर हम बात करें पीकॉक की, तो जो नाचता है ना, जो ऐसे खोल के, दैट इज मेल नॉट फीमेल. जो फीमेल है वो ऐसे डांस नहीं करती. ओके, वी टॉक अबाउट लायन. तो लायन के यहाँ पर जो मेल होता है उसके यहाँ पर ऐसे हेयर्स होते हैं जो लायनस के या फीमेल लाइन के नहीं होते. तो दैट मीन्स मेनी एनिमल्स दे शो द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, दैट मीन्स टू डिफरेंट फॉर्म. अब यहाँ पर कैसी होगी वो फॉर्म, तो यहाँ ना तो हेयर है, ना पंख है, ना कुछ मस्तिष्क या कुछ ऐसा है. ओके, तो हाउ दे शो द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. फर्स्ट again read this term, that is sexual dimorphism. Di means two, morpho mean form, whereby external character we can differentiate which one is male and which one is a female. Okay, अब देखो in this case for fun only, do not take it seriously. अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जो हाइट ऑफ मेल है उसकी ज़्यादा होती है, फीमेल की जनरली हाइट क्या होती है, कम होती है. पहली बात तो ये, I'm again saying is for we can say fun only, do not take it seriously. तो पहली हाइट है, अदर भी हो सकती है. मेल की जनरली हाइट क्या होती है ज़्यादा, फीमेल की हाइट क्या होती है कम होती है.
अगर हम आदमी को कहें तो कहते हैं कि सीधा साधा आदमी है, और जो औरत कहते हैं उसको समझना मुश्किल है, दैट मीन थोड़ी टेढ़ी है, ऐसा कहते हैं ना. ओके, इज जनरल टॉक. बट हियर द फंक्शन वी कैन से स्ट्रक्चर इज रिवर्स. इसमें क्या है, जो फीमेल है हियर द फीमेल इज, फीमेल को ऐसे डिनोट करते हैं, फीमेल इज लॉन्गर. फीमेल क्या है, लॉन्गर है, और जो मेल है वो क्या है, स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू फीमेल. सेकंड क्या है कि इन मोस्ट ऑफ केसेस, नॉट इन ऑल, मोस्ट ऑफ केसेस जो टेल की साइड से है, दैट टेल इज ब्लंट. टेल इज ब्लंट, दैट मीन्स द पोस्टीरियर साइड. दिस इज द एंटीरियर साइड, जहां पर क्या है, माउथ है. दिस इज द पोस्टीरियर साइड, जहां पर क्या है, एनएस है. तो यहां पर जो टेल है या वी कैन से जो एंड है, दैट इज ब्लंट, दैट इज ब्लंट है इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ मेल. तो दो डिफरेंस हो गए. आई एम टॉकिंग हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट एस्केरिस. ओके, जो मोस्ट कॉमन इसका एग्जांपल है, हम स्पेसिमेन में देखेंगे किसी व्यू से. तो दैट मीन फीमेल इज लॉन्गर देन मेल एंड मेल इज स्मॉलर देन फीमेल. और जो फीमेल मेल है जो थोड़ा सा टेढ़ा है एंड से. ओके, तो ये ऐसे इकलौता मेल है, टेढ़ा है, सीधा नहीं है. ओके, और इसकी हाइट भी क्या है, कम है. इज क्लियर और नॉट? नाउ द सेकंड थिंग इज कि वी कैन से विच वन इज, वी कैन से मोर इन लेंथ, विच वन इज लेस इन लेंथ. अगर मैं ऐसा कह दूं कि दो लाइन है, कि दिस लाइन और दिस लाइन, अब इनमें से बड़ी कौन सी है, सपोज दिस इज द लाइन ए, दिस इज द लाइन बी, तो लाइन बी है. तो अब कौन सी बड़ी है, अभी लाइन सी बड़ी होगी? नो, दैट मीन फॉर ए अडल्ट इंडिविजुअल और अडल्ट एनिमल देयर इज ए स्पेसिफिक हाइट. उसको मेजर करके ही हम अडल्ट के हिसाब से देखते हैं. तो लंबा और छोटा कौन होगा? ऐसा नहीं कि इसका बच्चा हो छोटा था तो वो तो छोटा बड़ा हो ही सकता है इन देयर ग्रोइंग पीरियड, तो ऐसा नहीं होगा. वी आर टेकिंग हियर द अडल्ट साइज एंड शेप, ये ध्यान रखना है. ओके, तो फीमेल कैसी है, लॉन्गर है, मेल स्मॉलर है. मोस्ट ऑफ इन मेनली एस्केरिस की बात करें तो द पोस्टीरियर एंड इज ब्लंट एंड है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, बेंड हुआ है. सो दिस इज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन मेल एंड फीमेल, वी कैन से एस्केलमेंथीज और राउंड फॉर्म. सो देयर आर 3 एग्जांपल. वन इज एस्केरिस, दैट इज नोन एज राउंड वर्म. ये डिजीज कोज करता है, एस्केरियोसिस, ह्यूमन बीइंग में भी होती है. सेकंड इज नोन एज वुजेरिया, वुजरेरिया, दैट इज नोन एज फिलेरियल वर्म, एक डिजीज कोज करता है फिलेरियोसिस. एंड अदर इज एंसाइलोस्टोमा, दैट इज आल्सो नोन एज हुक वर्म. अब देखो यहाँ पर कई बार बच्चे क्या करते हैं, दिस वर्ड इज हुक, और इस हुक को हुकर एंड सर्कर के साथ रिजेंबल करके इसको प्लेटीहेलमिंथेस बना देते हैं. ओके, तो इसमें हुक लाइक्स, दैट मीन्स माउथ होता है जो उसको किसी में पैरासिटिक फॉर्म में हेल्प करता है, बट नॉट हुक लाइक दैट इन जो प्लेटीहेलमिंथेस में है. तो हुक वर्म से इसको प्लेटीहेलमिंथेस में मत इंक्लूड करना. सो एंसाइलोस्टोमा, दैट इज नोन एज हुक वर्म. सो एस्केरिस, राउंड वर्म, वुजरेरिया, दैट इज फिलेरियल वर्म. ओके, तो यहाँ पर क्या नए कैरेक्टर आए, दैट इज pseudocoelomate, एटलीस्ट coelomia, जैसे भी कंप्लीट इनकम्प्लीट. सेकंड इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड थर्ड हियर वी कैन से सेक्स इज सेपरेट है, नया नहीं है, पहले भी थी, बट देयर इज अ टर्म नोन एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, दैट मीन्स वी कैन डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल. तो अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है. तो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या आया, बॉडी इज क्रॉस सेक्शन में क्या है, बॉडी सर्कुलर है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी पॉज है, एंड pseudocoelomate है, एंड ऑल्सो शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. ओके, वन मोर थिंग हियर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. इफ यू टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में मस्कुलर फेरिंग्स होता है. फेरिंग्स हमारे भी सिस्टम में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स. मस्कुलर
इसका मतलब क्या है कि दैट मीन्स रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, चाहे वो माउथ हो चाहे वो एनस हो, दैट इज नॉन मस्कुलर एंड बट ओनली फेरिंक्स इज ए मस्कुलर। वी नो दैट मसल्स कहां से आई, मेसोडर्म से, मेसोडर्म से क्या आई, मसल्स आई। तो इसमें मस्कुलर फेरिंक्स दैट मीन्स द ओनली फेरिंक्स इज muscular, rest part of alimentary canal is a non-muscular. Okay, so this is all about the Aschelminthes. So bilateral organ system, triploblastic, pseudocoelomate, complete digestive system with muscular pharynx, ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देन एक्सक्रीटरी पॉज, सेक्स सेपरेट, स्यूडोसेक्सुअल, डाइमॉर्फिज्म, फीमेल लॉन्गर है, मेल स्मॉल है, और मेल में जो एंड है वो ब्लंट है। तो एक क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल एस्कैरिस। तो डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ, सेक्स सेपरेट है। एस्कैरिस that is roundworm, Wuchereria that is filarial worm, and Ancylostoma that is a hookworm. Okay, so this is all about the Aschelminthes. There is no circulatory system, no respiratory system. Okay, thank you.